Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Himanshu Srivastav, and in this video I'm going to talk about why your Facebook ads are not working. So friends, अगर आप Facebook पे ad run कर रहे हो, अपने business के लिए leads generate करना चाह रहे हो, and if you are not satisfied with the current performance of your Facebook ad campaign, then this video is going to give you some quick insights that will help you to implement right strategy. You will have to fix the things that can increase the performance of your Facebook ad campaign, and you can get the maximum returns of your ad spends. So in this particular video I'm going to share 5 reasons why your Facebook ads are not working. In my last video मैंने share किया था Google Ads का एक case study. If you want to watch that video you can just click on the I button and I will also drop the link in my description. So look, there are lots of people who are running ads on Facebook, एंड आज के डेट में बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे वेयर यू कैन लर्न हाउ टू रन कैंपेन्स एंड बाय जस्ट implementing some few steps you can set your campaign. बट उसका कुछ ड्रॉबैक भी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो द ins and outs of running profitable Facebook ad campaign, then you are going to waste your money. And as per the report, एवरेज 40% एड स्पेंड्स लोग अपना वेस्ट करते हैं, जस्ट दे कुड नॉट मैनेज देयर कैंपेन्स इफेक्टिवली, बिकॉज यू नो there are lots of things that you have to work on. Then only you can get better results from your Facebook ad campaign, and those 5 top reasons I'm going to share in this video. Okay, so the first thing is your audience. Look, there are more than 3 billion active users on Facebook today, but not 3 billion people are your target audience. You have to know who your target audience is, right? आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, और उस प्रोडक्ट उस सर्विसेज के लिए टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट? So what is their demographics, what is their age, what is their target location, what is their paying capacity, and lots of other things you have to know, and then you can target them on Facebook. Let me show you. uh, there are different ways you can target on Facebook. If I just show you audience, you can just go to Facebook ads manager, and where you can target audience. There are 3 different ways you can target audience. The first one is saved audience, the second one is lookalike audience, and the third one is your custom audience. So if we talk about saved audience is जहाँ पे आप फेसबुक का डेटाबेस का यूज करके वहाँ पे आप ऑडियंस को चूज करते हो बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, राइट? सो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स जिसकी बेसिस पे आप अपने लिए पोटेंशियल ऑडियंस को चूज करते हैं. फिर चाहे आपको अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना है, अपने रेस्टोरेंट्स बिजनेस को प्रमोट करना है, कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस को प्रमोट करना है, किसी भी नीश पे आप काम कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी में आपका बिजनेस है, बी टू बी मॉडल हो, बी टू सी मॉडल हो, हर मॉडल के लिए आप यहाँ पे टारगेट ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज यू मस्ट हैव टू नो हु इज योर टारगेट ऑडियंस एट फर्स्ट, राइट? एंड कई बार लोगों का ये कंफ्यूजन होता है वेयर दे शुड प्रमोट, क्योंकि कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक, गूगल. सो वंस यू अंडरस्टैंड आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअली में कौन है, देन यू विल ऑल्सो गेट क्लैरिटी कि कहाँ पे आपको अपने एड्स को प्रमोट करना है. बिकॉज इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो शेयर गूगल एड्स ऑडियंस स्टफ, लाइक कैसे आप गूगल एड्स पे अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और क्या कुछ ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है अपने ऑडियंस को रीच आउट करने का. तो उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स पे किस तरीके से अपने ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेव्ड ऑडियंस की, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूँ. हमने बी टू बी कैंपेन रन करा था यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्कशॉप के लिए, जहाँ पे हमारा जो टारगेट ऑडियंस था वो बिजनेस ओनर्स था, जो भी स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस ओनर्स हैं उन लोगों को हमने टारगेट करा था, सो दैट कि हम अपने कंसल्टिंग को सेल कर सकें. एंड देन उसके बाद बेस्ड ऑन देयर कंसल्टेशन कॉल हम उनको अपसेल करेंगे अपने सर्विसेज या फिर अपनी वन ऑन वन कोचिंग सेशन को, राइट? तो इस तरीके से हमारा ये फनल था, और यहाँ पे हमने टोटल 500 से ज़्यादा का लीड जनरेट करा है, जो कि बी टू बी लीड्स है फेसबुक के थ्रू.
एंड यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट था वो 22 रुपीज़ था। तो जस्ट लेट मी शो यू ऑडियंस, जो हमने ऑडियंस टारगेट करा है, ठीक है। तो हमें पूरी क्लैरिटी थी कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट, जॉब टाइटल्स, इन सारी चीज़ों को टारगेट करा, एंड फिर हमने ऑडियंस को रिफाइन करा डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हो, राइट। Just let me show you. If you just want to use this saved audience option, you can just save your audience so that कि आप अपने different campaigns में आप इसका यूज कर सको। ओके, तो यहाँ पे you can just give it a name like maybe yoga training, ओके, योगा ट्रेनिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस एंड योर चॉइस। एंड यहाँ पे फिर हम टारगेट लोकेशन को चूज करते हैं। जहाँ भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो आप उस लोकेशन को टारगेट करोगे। आप यहाँ पे सिटी, स्टेट, कंट्री टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोकेशंस को टारगेट करा है एंड देन यू मस्ट हैव टू चूज द एज रेंज। आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या है वो आपको चूज करना है यहाँ पे। देन जेंडर, you can choose the language they speak, and then there is an option that is detailed targeting, and this is the gold mine of this particular saved audience. यहाँ पे you can, if you just click on this browse option, आप यहाँ पे देख सकते हो there are different options called demographics, interests and behaviors। अगर मैं बात करता हूँ demographics की, तो you can target people based on different parameters like education, qualification, financial status, life events, parents, relationship status। So if you just go to relationship status, just let me, okay, so if you just go to relationship status, you can just see like in a relationship, engaged, users, single, married person। so आप अपने ऑडियंस को बहुत ही स्पेसिफिक जाकर टारगेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई मे बी गिफ्ट बिजनेस में हो, गिफ्टिंग बिजनेस में हो, जहाँ पे आप लाइक अपने गिफ्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो, ठीक है, और फॉर एग्जांपल कि वैलेंटाइन का टाइम आने वाला है, तो इन दैट केस यू कैन टारगेट पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, राइट। और आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उन सारे ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल कि आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, कोई भी जो ऐसा आइटम जो गिफ्ट के तौर पे दिया जा सके लोगों को, तो इन दैट केस यू कैन रन एड्स बाय सेलेक्टिंग दिस ऑडियंस। तो यहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो यू मस्ट हैव टू एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपके बिजनेस के लिए इसमें यूजफुल है, जो आप अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो। अगर आप लाइफ इवेंट्स की बात करोगे, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टारगेटिंग ऑप्शन ऑन फेसबुक, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देख सकते हो, जिनका अपकमिंग बर्थडे है। अगर अगर अगेन मैंने गिफ्ट का बात किया है, तो यू कैन ऑल्सो टारगेट दिस पर्टिकुलर ऑडियंस जिनका अपकमिंग बर्थडे है, राइट। फ्रेंड्स ऑफ पीपल जिनका बर्थडे आने वाला है, आप इनको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे कन्वर्जन के, क्योंकि ये सारे ऑडियंस होंगे कहीं ना कहीं गिफ्ट को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, राइट। या फिर अगर आपका ऑफर अच्छा होगा तो दे कैन शो देयर इंटरेस्ट इन योर ऑफर, राइट। अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की, तो यू कैन ऑल्सो सी लाइक डिफरेंट, यहाँ पे पेरेंट्स एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हो, पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स। तो अगर आपका कोई प्री स्कूल का बिजनेस है जिसको प्रमोट करना चाह रहे हो, तो आप ऑब्वियसली बात है कि इन सारे ऑडियंस पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो, दे आर गोइंग टू बी योर पोटेंशियल ऑडियंस। अगर मैं वर्क की बात करता हूँ, तो यू कैन टारगेट बेस्ड ऑन जॉब टाइटल्स लाइक CEOs, फाउंडर्स, अकाउंटेंट्स एंड CXOs एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट की, तो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट्स लाइक बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस। इफ़ यू कैन जस्ट गो टू बिहेवियर, आप यहाँ पे देख सकते हो सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक एनिवर्सरी हो गया, लाइक जिनका 61 to 90 डेज में एनिवर्सरी आने वाला है, आप बिहेवियर चेक कर सकते हो। मोबाइल डिवाइस यूजर्स, ऑल मोबाइल डिवाइस यूजर्स बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अगर मैं तो यहाँ पे डेट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा डीप आप जा सकते हो अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। कंज्यूमर को क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। डिजिटल एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, जिनका गेमिंग में इंटरेस्ट है। फेसबुक पेमेंट यूजर्स आप देख सकते हो, ऐसे लोग जिन्होंने फेसबुक पे लास्ट 30 डेज में पेमेंट करा है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो बाई योर प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज दे आर द यूजर्स जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मोर कैटेगरीज इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, परचेज बिहेवियर आप देख सकते हो, इंग्लिश शॉपर्स, ट्रैवल में आप टारगेट कर सकते हो, फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। सो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सक्लूड पीपल, ऐसे ऑडियंस को आप एक्सक्लूड कर सकते हो जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लेयर टारगेटिंग भी कर सकते हो। लेयर टारगेटिंग से बेसिकली आप अपने ऑडियंस को काफ़ी रिफाइन करते हो सो दैट कि आपको क्वालिटी लीड्स मिले। कई बार लोगों का ये कंप्लेन होता है कि फेसबुक पे उनको क्वालिटी लीड नहीं मिलती है, तो ये फेसबुक का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। यू डोंट नो हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक, राइट। सो अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो यू मस्ट हैव टू रिफाइन योर ऑडियंस प्रॉपरली। एंड फॉर दैट आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ टारगेटिंग सेट कर सकते हो। लाइक अगर मैं जॉब टाइटल की बात करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सीईओ डाला। यहाँ पे मैं कुछ जॉब टाइटल्स टारगेट करता हूँ, ओनर एंड सीईओज, फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स एंड सम अदर फाउंडर्स। सो दीज आर सम डिफरेंट डेजिग्नेशंस जो हमने टारगेट करा है। एंड देन वी विल नैरो डाउन द ऑडियंस बाय डिफरेंट इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल जो लोग फाउंडर हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, डिजिटल एजेंसी हो गया या फिर बिजनेस प्रमोशन। अब जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसका बिहेवियर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन माय केस मेरे जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो कहीं ना कहीं डिफरेंट सीआरएम का यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स, तो मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया जिनका सेल्स फोर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो लोग फाउंडर्स है, सीईओज हैं, और जो सीआरएम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे ऑडियंस हैं वो हमारे सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे, जिनका लीड जनरेशन में इंटरेस्ट है। मैंने यहाँ पे फिल्टर किया ऑडियंस को जो डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग सिस्टम का यूज करता है, जैसे मेल चिम्प हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, ए वेबर हो गया। तो बहुत सारे डिफरेंट ऐसे टूल्स हैं। मार्केटिंग एजेंसी में जिनका इंटरेस्ट होगा, कन्वर्जन मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट होगा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑडियंस को हमने टारगेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि एक तो हमारा जॉब टाइटल से जो कि हमने डेजिग्नेशन को टारगेट करा है, और दूसरा हमने नैरो करा है ऑडियंस को डिफरेंट इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो अब ये जो ऑडियंस रिफाइन होकर आ रहा है बीच का, दिस इज द ऑडियंस जो कि मेरे ऐड को देखने जा रहे हैं, जो कि दोनों कंडीशन को मैच करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर दूंगा किनको, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, राइट, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू बी माई पोटेंशियल ऑडियंस बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन टू दिस बिजनेस एंड उनको मेरे सर्विस की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको एक्सक्लूड कर दूंगा सो दैट कि मेरा जो एड बजट है वो अननेसेसरी वेस्ट ना हो, राइट, डिफरेंट ऑडियंस पे जो कि मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर्स, इनको मैंने क्या किया, इनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया अपने ऑडियंस के लिस्ट से, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज सेव्ड ऑडियंस फीचर। आप इसको सेव कर सकते हो सो दैट यू कैन यूज दिस ऑडियंस इन फ्यूचर। नाउ द सेकेंड वन इज लुक अलाइक ऑडियंस। अगर मैं बात करता हूँ लुक अलाइक ऑडियंस की, तो लुक अलाइक ऑडियंस के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। दैट सोर्स कैन बी योर कस्टम ऑडियंस। तो पहले कस्टम ऑडियंस देखते हैं, फिर लुक अलाइक ऑडियंस की बात करेंगे। तो कस्टम ऑडियंस की अगर हम बात करते हैं, तो कस्टम ऑडियंस इज लाइक ऐसा ऑडियंस जो कि सेव्ड ऑडियंस से डिफरेंट है और कहीं ना कहीं हायर क्वालिटी वाले ऑडियंस है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ऑडियंस जिसका कहीं ना कोई इंट्रैक्शन आपके बिजनेस के साथ डिजिटली हो रखा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खुद का सोर्स हो सकता है या फिर आप मेटा का सोर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप वीडियो कंटेंट बनाते हो, आप फेसबुक पे लीड फॉर्म ऐड रन करते हो, ठीक है, डिफरेंट आपके पास पेजेस है जिस पे आपके पास इंगेजमेंट्स अच्छी होती है, ठीक है। तो उन सारे सोर्सेज का आप यूज कर सकते हो। इन दैट केस सपोज हमने वीडियो पे क्लिक करा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ऐसे ऑडियंस जिन लोगों ने यहाँ पे सपोज मैंने कंटेंट टाइप इंगेजमेंट टाइप पे आप चूज करते हो, तो पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड ऑफ योर वीडियो, people who viewed at least 10 seconds of your video, people who have watched at least 95
50% ऑफ योर वीडियो। तो दैट मीन्स कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे टारगेट करा है people who have watched at least 75% or maybe 50% of video and above all, right, इसको मैंने टारगेट कर लिया। तो अब ये ऐसे लोग हैं ना जो मेरे कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा एंगेज होते हैं, जिनको मेरा कंटेंट काफ़ी पसंद आता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं काफ़ी चांसेस है कि मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखेंगे, राइट, या फिर मेरे ऐड को देखेंगे। तो लास्ट 365 डेज में जिन लोगों ने भी 50%, 75% और 90% मेरे वीडियोस कंटेंट को देखा है, मैंने उनका एक ग्रुप बना दिया, राइट, एक ऑडियंस का नाम डाल दिया, लाइक मे बी हाईली एंगेज्ड, मैंने एक नाम डाल दिया इसका, ठीक है। और इसको इसका एक डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हो, लाइक मैक्सिमम ड्यूरेशन 365 डेज का है, ओके। देन व्हाई इट इज नॉट इनेबल, शुड वर्क, ओके। सो you have to choose video here and then आप यहाँ पे अपने ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप ऐसे ऑडियंस को क्रिएट कर रहे हो जो कि आपके वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड हुए हैं, और उनका यूज कर सकते हो, उस ऑडियंस का यूज कर सकते हो आप अपने नेक्स्ट कैंपेन में अपने ऐड को प्रमोट करने के लिए, सो दैट कि वो लोग आपके ऐड को देखें। सिमिलरली आप लीड फॉर्म की बात करते हो, तो लीड फॉर्म में आप जो लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं, तो लीड जनरेशन कैंपेन में जो लोग भी आपके लीड फॉर्म पे फील करते हैं, अपनी इंक्वायरी सबमिट करते हैं, उन सारे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशन सेट कर सकते हो। एनी वन हु ओपन दिस फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म का जो नाम है वो भी आपको दिख जाएगा, एडू चॉइस, सपोज जो भी आपका पेज है वो पेज आप चूज कर लोगे। यहाँ पे लीड फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बिजनेस पेज होगा, जो भी कैंपेन आपने रन किया होगा, उसका डिफरेंट लीड फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वो लीड फॉर्म हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो रिटेंशन डेट टाइम है, लास्ट मैक्सिमम 90 डेज की ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑडियंस का नाम दे सकते हो, ABC, जो भी आपको ऑडियंस का नाम देना है वो आप दे के क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो सेट मल्टीपल रूल्स हेयर, यू कैन सेट मल्टीपल पैरामीटर्स हेयर। नाउ डिफरेंट सोर्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस। एंड अगर मैं बात करता हूँ वेबसाइट सोर्स की, तो यहाँ पे आपका अगर वेबसाइट है तो यू कैन इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल, वहाँ पे आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ऐसे लोगों को जो लोग आपके वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, तो उन सारे ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। आपके पास कस्टमर का लिस्ट है, आप उसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल आईडीज है, मोबाइल नंबर है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो कस्टमर ऑडियंस के रूप में, और उनको आप ऐड दिखा सकते हो फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो लुक लाइक ऑडियंस आप यहाँ पे देखोगे, तो नाउ लुक लाइक ऑडियंस में क्या है कि यहाँ पे आपको एक सोर्स क्रिएट करना पड़ता है। सोर्स आपका जो है कस्टमर ऑडियंस का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जो भी डिफरेंट कस्टमर ऑडियंस का आपने ऑप्शन देखा है, उसमें से कोई भी कस्टमर ऑडियंस का सोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। एंड बेस्ड ऑन दैट फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स है, राइट। तो आप जो सोर्स दे रहे हो फेसबुक को, तो फेसबुक उस ऑडियंस को एनालाइज करेगा, फेसबुक का जो मशीन लर्निंग है उस ऑडियंस को स्टडी करेगा, और बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक फेसबुक आपको एक न्यू ऑडियंस देगा जो कि उसकी बिहेवियर से मैच करता रहेगा। इससे आपका जो एड है वो बियॉन्ड योर कस्टम ऑडियंस भी आप उसको ले जा सकते हो, नए ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो, और ऐसे ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो जहाँ से आपके कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। दिस इज द स्केल ऑफ फ्रॉम 0 to 10%, और जितना क्लोज टू 0% रहेगा आपके ऑडियंस की रिलेवेंसी उतनी हाई रहेगी। बट यू कैन ऑल्सो यूज अप टू 3 or 4%, यू कैन जस्ट गो टू सम ब्रॉडर, और यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो कैंपेन को, राइट। तो यहाँ पे आप लोग लाइक ऑडियंस का भी यूज कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव टू गो मोर डीपर बाई टारगेटिंग योर ऑडियंस, एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि जो आपका कैंपेन है वो सही ऑडियंस तक रीच आउट कर पा रहा है, आपका जो ऑफर है, आपकी जो मार्केटिंग मैसेजेज है वो सही लोगों तक पहुंच पा रही है, राइट। तो टारगेटिंग राइट ऑडियंस इज नॉन नेगोशिएबल इन ऑर्डर टू make your Facebook ad campaign successful. Okay, now the second thing is poor ad creative or copy. So again आपका जो कैंपेन है, देखो फेसबुक क्या है ना, फेसबुक एक इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग है, जहाँ पे आप लोगों की अटेंशन को
कैप्चर करते हो जहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहे हो। कोई बंदा है जो फेसबुक पे एंगेज हो रहा है, वो कहीं खोया हुआ है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के फीड्स में इंजॉय कर रहा है, और उसको आप एक ऐड दिखाकर चाहते हो कि वो आपके लैंडिंग पेज पे आ जाए, वो आपकी ऐड पे क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पे जाए, आपके प्रोडक्ट को देखे, आपके बिजनेस के लिए इंक्वायरी जनरेट करे, तो कहीं ना कहीं आप उसको इंटरप्ट कर रहे हो, राइट। तो फॉर दैट, अगर आपका एड क्रिएटिव बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, अगर आपका एड कॉपी अच्छा नहीं है, तो दे आर नॉट गोइंग टू पे देयर अटेंशन। सो यू मस्ट हैव टू get their attention first before you get their inquiry or their money. So now, how to create effective ad creative or copy, that is a very important part, right? अगर मैं बात करूँ अपने कैंपेन का, मैं आपको फिर से एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बेसिक सा रूल है, यू मस्ट हैव टू टेस्ट लॉट्स ऑफ क्रिएटिव्स। सो आप डिफरेंट वेरिएंट्स आप क्रिएट करो अपने क्रिएटिव के, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉन्ट्स, डिफरेंट कॉपीज, एंड देन आपको टेस्ट करना है कि कौन सा क्रिएटिव आपको बेटर रिजल्ट ला कर दे रहा है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो 500 प्लस हमने लीड जनरेट करा है यहाँ पे, एंड हमने 30 प्लस एड्स टेस्ट करे हैं यहाँ पर, डिफरेंट एड क्रिएटिव्स, डिफरेंट एड कॉपीज, डिफरेंट हुक्स, डिफरेंट सीटीएस। फिर जाकर हमें समझ में आया कि कोई एक दो ऐसा ऐड है जो हमारे लिए बेटर रिजल्ट ला कर दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे एड्स हमने इनिशियल लेवल पे ही बंद कर दिए, क्योंकि हमें अपना विनिंग ऐड मिल गया था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एक ऐसा कैंपेन है जहाँ से हमें सिर्फ एक लीड मिले, सारे वेबसाइट लीड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा कैंपेन है जहाँ से हमें 6 लीड मिले हैं, एक ऐसा कैंपेन आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ से हमें 70 लीड्स मिले हैं, और यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट पर लीड था वो भी काफ़ी कम था, 18 रुपीज़ था। और एक ऐसा लीड एक ऐसा कैंपेन हमारा बना जो कि हमें 381 लीड ला कर दिया, दैट इज आवर विनिंग एड कॉपी और क्रिएटिव, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एड्स को जब हमने टेस्ट अगर किया है, तब जाकर कहीं ना कहीं हमें एक विनिंग एड मिला है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम सिर्फ एक एड कैंपेन, एक कॉपी, एक क्रिएटिव पे एड रन कर रहे होते, तो यू कैन नॉट फाइंड की और फिगर इट आउट कि क्या बेटर हो सकता था, राइट। तो वो ऑप्शन आपको तभी मिल पाएगा जब आप टेस्टिंग करोगे डिफरेंट क्रिएटिव की, डिफरेंट कॉपीज की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ऑन फेसबुक एड्स। क्योंकि अब आपका जो ऑडियंस है ना, वो क्या पसंद कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन स्केल योर कैंपेन, not testing and optimizing. So this is very important, you must have to test different things। चाहे आपका ऑडियंस हो, आप डिफरेंट ऑडियंस सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एड सेट भी 3 सेट किए थे इनिशियली। 3 एड सेट में हमने 3 अलग अलग ऑडियंस टेस्ट करे। एक ऑडियंस जहाँ पे हमें कॉस्ट पर लीड मिल रहा था 57 रुपीज़, दूसरा ऑडियंस जहाँ पे हमें कॉस्ट पर लीड मिला था 43 रुपीज़, और तीसरा ऑडियंस जहाँ पे हमें कॉस्ट पर लीड मिला ओनली 22 रुपीज़। तो इस दोनों कैंपेन को हमने डिसकंटिन्यू करा। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे जो यहाँ पे एडिट्स हैं वो लगभग 1.5 साल पहले के हैं, 1.5 ईयर्स हो चुके हैं सारे कैंपेन को रन किए हुए। तो ये पुराना डेटा ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, जो केस स्टडी है वो पुराना ही होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कैंपेन है, इस कैंपेन में भी हमने डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट करा है, फिर जाकर हमें समझ में आया कि क्या हमारे लिए काम कर रहा था। हमने अपने लैंडिंग पेज पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, काफ़ी सारे हेडलाइंस चेंज किए हैं, काफ़ी सारे सीटीए चेंज किए हैं। तो यू मस्ट हैव टू एक्सपेरिमेंट कि क्या क्या ट्विकिंग आप कर सकते हो जिससे कि आपको बेटर कन्वर्जन मिल सके, आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो सके। तो टेस्टिंग के लिए सिर्फ आपका क्रिएटिव नहीं है, सिर्फ आपका ऑडियंस नहीं है, आपका एड कॉपीज है, आपका सीटीएज है, आपका ऑफर्स है, आपका ऑडियंस है। तो इन साथ जितने भी वेरिएंट्स आपके, जितने भी एसेट्स आपके यूज हो रहे हैं इन कैंपेन्स में, उन सारे के सारे एसेट्स को आप टेस्ट करोगे कि कौन सा एसेट आपका जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कौन सा एसेट है जो कहीं ना कहीं आपके कन्वर्जन को हैम्पर कर रहा है, आपका बजट कंज्यूम कर रहा है, जहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको आप फिक्स करोगे, राइट। नाउ, नॉट इनफ एड बजट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोगों के पास इनफ बजट नहीं होता टेस्टिंग के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इस कैंपेन पे स्पेंड करा है टोटल 12K, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में, इनिशियल एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं हमारे इस कैंपेन में, फिर जाकर हमने उस कैंपेन को स्केल करा है, राइट। तो जो भी कैंपेन आपका गोल हो, आपका कैंपेन का कुछ भी गोल हो, फिर आपको लीड जनरेट करना है, आपको सेल्स लाना है, आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, कन्वर्जन चाहिए, तो
रिगार्डलेस ऑफ एनी गोल आपको टेस्ट करना पड़ेगा मल्टीपल क्रिएटिव्स, मल्टीपल एडसेट्स, एंड फॉर दैट यू मस्ट नीड सम बजट, राइट। तो इनिशियली पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि लोगों को पेशेंस नहीं होता है। अगर अभी चलाएंगे ऐड तो अभी रिजल्ट चाहिए। कई बार होता है कि लोगों को एक होता है ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। सो दिस इज नॉट अ पुश बटन कि आपने बटन दबाया और एकदम इंस्टेंट आपके पास इंक्वायरी की बरसात हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। यू मस्ट हैव टू टेस्ट थिंग्स, और इसमें समय लगता है, दो दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक समय लगता है कैंपेन को ऑप्टिमाइज होने में, कैंपेन को लर्निंग फेज से बाहर आने में, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने कैंपेन को स्केल कर सकते हो। So you must have to be patient, and you must have to test different things so that you can understand कि क्या आपके लिए काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। Now, not tracking the right metrics, so this is again important thing कि आपको क्या ट्रैक करना है, आपका जो मेट्रिक है, KPIs है, वो क्या है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना। एंड देन ओनली कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड वीकली आप उसको रिव्यू कर सकते हो, मंथली आप रिव्यू कर सकते हो कि आपका जो कैंपेन है उसका ओवरऑल हेल्थ क्या है, राइट। क्योंकि यू कैन ओनली इम्प्रूव थिंग्स दैट यू आर ट्रैकिंग। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइट मेट्रिक को ट्रैक करना, जैसे कि रिजल्ट हो गया, रीच हो गया, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या ट्रैक करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से इन सारे मैट्रिक्स को रिमूव करता हूँ, एंड जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ अदर मैट्रिक डालता हूँ, लाइक CTR, इम्प्रेशन, क्लिक्स, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मेजर जो मैट्रिक है वो मैंने डाला है, और इसको मैं करता हूँ सेव एज प्रीसेट। ओके, सो दैट कि यहाँ पे ये जो एसेट है, ये जो हमारा सेलेक्टेड कॉलम्स है, ये हमारे कैंपेन में अप्लाई हो सके। मैं इसको एक नेम भी दे सकता हूँ, लाइक ओके। सो दिस इज़ द प्रीसेट जो कि यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और इस कैंपेन में, इस पर्टिकुलर कैंपेन में मैं इस डेटा को देख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपके साथ ये जो हमारा ट्रैकिंग शीट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कैंपेन होता है, फिर चाहे हम फेसबुक पे ऐड रन करें या गूगल पे ऐड रन करें, ये हमारा की मेट्रिक्स है जो कि हम ट्रैक करते ही करते हैं, राइट। डे वाइज हम डेटा ट्रैक करते हैं, पर डे हमारा कैंपेन जो चल रहा है उस पर पर डे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, पर डे CPC क्या आ रहा है, CTR क्या आ रहा है, कॉस्ट क्या आ रहा है, हमारा इंप्रेशन क्या है, कितने लीड्स आए, कॉस्ट पर लीड क्या रहा, कन्वर्जन कितना हुआ, राइट। कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वीकली ट्रैक करते हैं। एंड देन रेवेन्यू हमने कितना जनरेट करा है, रोआस कितना आया है, रोआस परसेंटेज कितना आया है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारा क्या रहा, अर्निंग पर क्लिक हमारा क्या रहा, अर्निंग पर लीड हमारा क्या रहा, रिटर्न ऑन वन पर ₹1 स्पेंड हमारा क्या रहा, एंड लाइफ टाइम वैल्यू हमारा क्या रहा कस्टमर का। सो दिस इज द टेम्पलेट यू कैन यूज टू टारगेट योर टू ट्रैक योर marketing metrics and overall the health of your campaign. So guys, this is all about how you can fix your Facebook ad campaign and track the right things, improve your Facebook ad performance. And I hope कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. If you are running any business and you are promoting your business on Facebook or Google ads, if you are facing any challenges, you can book one-on-one consultation call with me, and on that call we will sit together and work how you can scale your business to the next level, how you can achieve your marketing goals. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।